کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے روحوں کی بحالی کے لیے. سو آئیں آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو ہم دعوت دیں گے تاکہ آج شام جو کلام خدا نے ان کے دل میں رکھا ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں اور ہم برکت پائیں. خدا کے کام ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابا کا نام ہے. آپ سب کو سلام. خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کے بھی. میرے عزیزو، آج ہم تھوڑے وقت کے لیے سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. اور خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت اپنے کلام کو بخشی ہے. اس لیے ہم پاک کلام کی تعظیم کے لیے ایک بار کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر جب ہم ورس کوٹ کر لیں گے پھر آپ سب تشریف رکھیے گا. خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی رسول کی واسط خداوند یسوع مسیح کا لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم سبوں کے لیے پڑھوں گا. متی 6 باب پہلی آیت سے: خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. سب تشریف رکھیں. میرے عزیزو، آج یہ جو یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ کون سا ہے؟ روزوں کے ایام ہے، روزوں کا مہینہ ہے اور سب لوگ روزے رکھ بھی رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور آج ہم تھوڑا سا سیکھیں گے قرآن کے پاک کلام میں سے دعا، روزہ اور خیرات. دعا، روزہ اور خیرات، ان تینوں کا آپس میں تعلق ایسا تعلق ہے جیسے چولی اور دامن کا ہوتا ہے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا نہیں کرتے تو پھر بھی ہمارا روزہ بے فائدہ ہے. اور اگر ہم خیرات نہیں کرتے پھر بھی ہمارا روزہ کیا ہے؟ بے فائدہ ہے. روزہ ہے کیا؟ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر روزے دار جو ہے وہ اپنی جان کو کیا کرتا ہے؟ دکھ دیتا ہے. اس لیے وہ دکھ دیتا ہے کہ تاکہ وہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرے. خدا کیا کرے؟ اس کے نزدیک آئے. میرے عزیزو، روزوں کا ذکر ہمیں خدا کے کلام کے اندر ملتا ہے، بہت دفعہ ملتا ہے. روزوں کی تعلیم ہمیں بہت مرتبہ خدا ان کے کلام کے اندر ملتی ہے. اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، خدا نے جو روزہ مقرر کیا وہ شام سے شام تک تھا. اور پھر قوم بنی اسرائیل نے روزے رکھے. وہ غالباً روزہ رکھتے تھے صبح سے شام تک. اور ملکہ ایستر انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا. بزرگ داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا. بزرگ ایلیا نے جو ہے 40 دن کا روزہ رکھا. بزرگ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا. اور میرے اور آپ کے نجات دینے والے، میرے اور آپ کے خداوند، میرے اور آپ کے آقا خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. اور میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یوحنا، مقدس یوحنا نبی جو ہیں، ان کے شاگرد بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. اور فقی اور فریسی جو تھے وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اور
खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह से किसी ने सवाल किया, ये हमारा टॉपिक के अंदर नहीं है लेकिन थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास फकीर फरीसियों ने आकर कहा कि देखो यूहन्ना के शागिर्द भी अक्सर रोजा रखते हैं और हम भी हफ्ते में 2 दफा रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है, बराती मातम नहीं करते, लेकिन वो वक्त आता है कि जब दूल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तब ये क्या करेंगे, रोजा रखेंगे। खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसके बाद मसीह खुदावंद जो है बदनी तौर पर हमसे क्या हो गए, जुदा हो गए। अब हमारे साथ ही हैं, अब हमारे वो साथ ही हैं, लेकिन बदनी तौर पर हमसे जुदा हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये अपनी जुबान मुबारक से ये उनकी ये अल्फाज सादर हुए थे कि फिर ये रोजा रखेंगे। हमें रोजा रखना क्या है, हमें भी फर्ज है, ठीक है, हमें रोजे रखने चाहिए। कुछ खास मीन कभी कभी ऑन एयर कह देते हैं, ये साढ़े तो कोई फर्ज नहीं, हमें रोजे रखने चाहिए, ठीक है, हमें रोजे रखने चाहिए। अच्छा, हम बात करेंगे फकीर और फरीसी। हमने वर्ष कौन सी कोट की, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। मेरे अजीजों, फकीर और फरीसी पीर को और जुमेरात को रोजा क्यों रखते थे? लोगों को दिखाने के लिए। बता सकता है? लोगों को दिखाने के लिए। पीर और जुमेरात को फकीर और फरीसी रोजा रखते। हमारे मुल्क के अंदर, शहर के अंदर कौन कौन से बाजार लगते हैं? पीर बाजार, पीर बाजार, जुमा बाजार, इतवार बाजार। इसी तरह उस जमाना के अंदर पीर और जुमेरात के दिन मंडी लगा करती थी, और जो फकीर और फरीसी थे वो पीर और जुमेरात को इसलिए रोजा रखते थे ताकि वो मोड़ों पर खड़े हो सके और अपने सर में पानी डाले, अपने मुंह को बिगाड़े, और वो लोग उस जगह पर क्या करते थे, चौकों के अंदर मोड़ों पर खड़े होकर उसी जगह पर नमाज नीत लेनी और लंबी लंबी दुआएं करनी और अपने मुंह को बिगाड़ना और अपने सर में पानी डालना। क्यों? ताकि लोग उनको क्या करें, रोजादार जाने, लोग उनको क्या करें, ईमानदार जाने, लोग उनको क्या करें, अच्छा जाने। हमने जो वर्ष कोट की वो क्या थी, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। और जो 3 चीजें जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, दुआ, रोजा और खैरात। फकीर और फरीसी इसलिए पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे क्योंकि उस दिन क्या थी, उस जगह पर मंडी लगा करती थी, और वो दिखाने के लिए कि लोग क्या करें, हमें नेक जाने, लोग हमारी तारीफ करें, लोग ये कहें कि ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, ये खुदा के आगे झुकते हैं और ये रोजा रखते हैं। मेरे चीजों, खुदा के कलाम के अंदर हमें एक वाक्य मिलता है। खुदा यीशु मसीह एक तमसील देते हैं, और खुदा यीशु मसीह वो तमसील देते हैं और कहते हैं कि एक फकीर और फरीसी हैकल के अंदर गया, आगे जाके दुआ करना शुरू कर दी उसने, और दुआ क्या कर रहा है, उस जगह पर एक मसूल लेने वाला भी था, वो पीछे बैठा था, ठीक है, और फकीर फरीसी जो है वो आगे बढ़ के आगे चला गया और खुदा से दुआ क्या कर रहा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदावंद देख मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, और मैं अपनी सारी आमदनी पर क्या करता हूँ, दया यकी देता हूँ। आया ये बात जो वो कर रहा है कि खुदावंद मैं रोजे भी रखना, खुदावंद मैं दया यकी भी देना, कि खुदा को नहीं सी पता, क्या खुदा को नहीं था पता? आप सबसे मुखातिब हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या खुदा को नहीं पता था?
खुदावंद खुदा जो है वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। क्या खुदा को नहीं पता था कि फकीर और फरीसी रोजा रखते हैं? क्या खुदा को ये नहीं पता था कि वो अपनी आमदनी में दयाकी देते हैं? लेकिन वो सुना किसको रहा था? वो किसको सुना रहा था? मसूल लेने वाले को। वो मसूल लेने वाले को, जिसके पीछे बैठा था और उसे सुना रहा था कि देख मैं क्या करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और देख मैं अपनी आमदनी पर दयाकी भी देता हूँ। वो खुदा को नहीं सुना रहा था। खुदावंद खुदा क्या है? इल्मुल गायब रखता है। खुदावंद खुदा हमारे दिल और गुर्दों को क्या करता है? जांचता है। खुदावंद हमारी सोचों को जानता है और खुदावंद खुदा की नजरें हमें हमेशा देखती रहती हैं। वो खुदावंद को नहीं बल्कि उस मसूल लेने वाले को सुना रहा था जो पीछे था। और उस मसूल लेने वाले ने क्या किया? उसने क्या किया बच्चों? क्या किया उसने? उसने आसमान की तरफ अपना मुंह नहीं उठाया, उसने ऊपर आंखें भी नहीं की और नीचे झुका है और कह रहा है ऐ खुदावंद मुझे माफ कर, क्योंकि मैं क्या हूँ? गुनहगार हूँ। वो आसमान की तरफ अपनी निगाहें नहीं उठा रहा, ऊपर को नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का पता है कि आसमान खुदा का तख्त है। वो इसलिए आसमान की तरफ भी नहीं देख रहा और नीचे झुककर दुआ कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह आगे कहते हैं कि खुदा की नजर में उन दोनों में से कौन रास्ता ठहरा? मसूल लेने वाला। वो फकीर और फरीसी तो अपनी शेखी बका रहा था या दिखा रहा था, अपनी शेखी दिखा रहा था उसको कि मैं तो दयाकी भी देना, मैं तो यह भी करना, मैं तो वो भी करना। बात करते हैं खैरात पर, खैरात चंदा पाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो साढ़े को पैसे घट होंगे ने ना, पहले था वक्त, पहले यही वक्त था हम सबके पास पैसे कम होते थे और जो साढ़े हाथ से टीवी होंगे सन ना ते असीं चंदा भला किस तरह पाने सन एंज थल्ले करके हाथ कि डिगन ते किसी को आवाज भी ना आवे, डिगन ते किसी को आवाज भी ना आवे। लेकिन आज असीं चंदा किस तरह पाने हैं? आज असीं इंज काटने हैं, अगर साढ़े को ज्यादा पैसे ने ना वाफर मिकदार च ने पैसे कटे थोड़े जैसे मुट्ठी चो काट के इस तरह दिखा के, पहले जेब में से हम निकालते हैं पैसे और फिर इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं और फिर हम थैली के अंदर पैसे डालते हैं ताकि लोग देखे। और फिर हम कभी ईस्टर को चर्च चले जाए या क्रिसमस को चर्च चले गए तो हमने ज्यादा चंदा डाल दिया, 500 चंदा डाल दिया। फिर हम दूसरे लोगों से हम कैसे बात करते हैं? अब आज 500 ही बात आज 500 ही बात है। अब मैं क्या यार की बूटे कराने फिरांगे, 500 ही बात हम ऐसे करते हैं। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास तो जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। उस फकीर और फरीसी ने क्या किया? लोगों को दिखाने के लिए वो क्या करते थे? लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते थे। इसलिए उनको अजर कहां से मिला? उन लोगों से जिन्होंने देखा बल्ले ऐ बंदा तो बड़ा ईमानदार है, जिसने उसकी तारीफ की उसी वक्त उसको उतना अजर ही मिल गया, बस दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हुई। मेरे अजीजों, बात करेंगे खैरात की। बस आयत नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जो टीपी होने से थले करके हाथ पाना, जो नोट होने से दिखा के हम ऐसे करते हैं। लेकिन अब हम जब खैरात करते हैं, खैरात करना, शुक्रगुजारी देना, आजकल रोज़े दे अयाम ने, रोज़े दे दिन चल रहे हैं, लोग की कर रहे हैं, बड़िया देगा वंड रहे हैं, बड़े हथियार दे रहे हैं, लेकिन करते की ने? फुफी तू ही आ जा, मामी तू ही आ जा। आज असी देग लाई, शुक्रगुजारी की, लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके हम बुला लेते हैं अपने घर पे और कहते हैं आज असी आज खैरात की, आज असी देग लाई है, असी रोजा खिलान रहे हैं। मेरे जीजो, खुदा का कलाम जो है वो हमसे क्या कहता है? खबरदार
अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए हाँ सर। ना करो। हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, शुक्रगुजारी। हम क्या कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, या हम अपना हदिया दे रहे हैं या खैरात कर रहे हैं। तो फिर की हुंदा है, कभी साडा कोई रिश्तेदार देख ला लवे शुक्रगुजारी दी ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ सद्या नहीं, बुलाया ही नहीं। मेरे अजीजों, लेकिन खुदा का कलाम जो मेरे और आपके राह के लिए रोशनी, खुदा के कलाम जो मेरी और आपकी नजात, खुदा का कलाम जो हमारी बसीदा हड्डियों की ताजगी, खुदा के कलाम जो हमारी जिंदगी है, वो हमसे क्या कहता है कि जब तू खैरात करे और जिदों तू हदिया देवे और जिदों तू मेरे नाम ते खैरात करे तो की कर। खुदा का कलाम हमसे कहता है बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रहकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। अपनी खैरात को पोशीदगी में दे, ताकि खुदावंद खुदा जो मुझे और आपको बरकत देता है, खुदा जो मुझे और आपको हर सुबह जगाता है और अच्छे अच्छे लवाज़िमात खाने के लिए देता है और अच्छे अच्छे लिबास पहनने के लिए देता है, उसकी शुक्रगुजारी करें। और जब आप खुदा के नाम पर हदिया दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, तो फिर नोट नु हाथ चो कढ़ के नहीं ते दूजियां नु दस्सण दी भी लोड़ नहीं है। अगर हम दिखाकर पैसे देंगे या दिखाकर चीजें ऐसे करेंगे, खैरात करेंगे, तो उसका अजर जितने लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक नोट अगर मैं हथिये में डाल रहा हूँ, आप सब ने देखा है, ऐसे मेरे हाथ के अंदर देखा है ना, तो आपने कहा बल्ले भाई आज तक पार्टी 1000 रुपये पाई जा रहा है, आज तक भरा ने 1000 रुपये पाया, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, वो अजर मुझे मिल गया। बस आप लोगों के सामने मेरी जो तारीफ होगी वो मुझे अजर मिल गया। खुदा के पास मेरे लिए कुछ अजर नहीं है, क्योंकि मैं खैरात भी दिखाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो तेरा दायां हाथ करता है वो बायां ना जाने। हालेलुया, हालेलुया। बात करते हैं दुआ की। दुआ, और जब 5 आयत से, और जब तुम दुआ करो, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, खुदा जो मेरे और आपके रब हैं, खुदा जो रहीम और करीम है, वो हमसे मोहब्बत रखते हैं। उनकी मोहब्बत क्या है? लाजवाल है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके नजात दहिंदा है, ये अल्फाज उनकी जुबान मुबारक से सादर हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तू दुआ करे, तू वाहिद है। तू क्या है? वाहिद है। एक शख्स के लिए कहा गया जब तू दुआ करे तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा। कोठरी के लिए कौन सी कोठरी में? कमरे में। अच्छा, और क्या करना है? दरवाजा बंद कर देना। दरवाजा बंद करना है। दरवाजा कौन सा बंद करना है? वाला। मेरे अजीजों, रोटियां असी 2 खानियां होंदियां ने, चटनी कुट के खा लेने हैं, ठीक है? और तो नहीं हो रहा आप मेरी बातों से?
ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ, ਤਾਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲਾਂ फलां 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 फलां, लेकिन खानी क्या हमने? दो रोटियां। वो तो चटनी के साथ भी खा के हमारा पेट भर सकता है। वो दो रोटियां क्या है? हमारी जरूरत है, लेकिन जो बाकी मटेरियल है वो क्या है? हमारी ख्वाहिश है, वो हम ख्वाहिश करते हैं। पैरा च पानी का जुत्ती है ना, गर्मियां ने तो स्पंज पा लो, या सर्दियां ने तो बंद बूट ला बजा, जरूरत है ना, ये जरूरत है। और ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश ये है कि मेरी कब्र के अंदर ब्रांडेड जूतों के ढेर लगे हों, ये क्या है? ख्वाहिश है। और पाने का कपड़े ही नहीं ना है, तान तक कर ली, लेकिन ख्वाहिश की है कि ब्रांडेड ते महंगे कपड़े हों, मेरी लवारियां भरियां हों। लेकिन ये क्या है? हमारी ख्वाहिशात है। जब मैं पैदल फिरता था तो मैं कहता था खुदावंद मुझे साइकिल दे दे, खुदावंद ने साइकिल दे दी। और फिर मैंने कहा थोड़े अरसे के बाद खुदावंद होने दे विच मोटर ला दे, हुण खुदावंद दे विच की कर मोटर ला दे, खुदावंद ने मोटरसाइकिल दे दी। फिर मोटरसाइकिल चला चला के ते हुण मैं की कहने खुदावंद नहीं ये दो टायर 4 टायर कर। ये क्या है? हमारी ख्वाहिशात है। हमारी ख्वाहिशात जो है बेलगाम है, ये बढ़ती जाती है, लेकिन खुदावंद खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी का दरवाजा क्या कर? बंद कर दे। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो से अखा बंद करने ना साढ़े अगे फिल्म चलनी शुरू हो जाती, आंखों के आगे तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की तस्वीर, मोटरसाइकिल की तस्वीर। ख्वाहिशात जो है हमारी वो क्या? बेलगाम है, वो हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाती है। और खुदावंद खुदा जो मेरा आपका खुदा है, और खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहता है कि जब तू दुआ करे, जब तू खुदावंद यीशु मसीह ने एक नमूना दिया दुआ का, हम देखें खुदावंद के पाक कलाम में कि जब उन्होंने अपने शागिर्दों का चुनाव करना था तो खुदावंद यीशु मसीह पोशीदगी में अकेले में जाकर उन्होंने दुआ की और आकर फिर अपने शागिर्दों को चुना। उसके बाद जब उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद भी जाकर पहाड़ी के ऊपर अकेले पोशीदगी में जाकर दुआ की। ऐसे में बहुत से वाकयात मिलते हैं कलाम के अंदर, पोशीदगी में अकेले में जाना और दरवाजे बंद करना, दरवाजे ख्वाहिशातों के। जो खुदावंद खुदा दुआ का जो मतलब है वो है खुदावंद खुदा से कम्युनिकेशन करना, खुदावंद खुदा से बातचीत करना। जब हम खुदावंद खुदा से बातचीत करते हैं, जब हम खुदावंद खुदा को अपना हाल बयान करते हैं, तो फिर हमारी ख्वाहिशात जो है वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। वो मेरे और खुदा के दरमियान रुकावट बन जाती है, वो मेरे और खुदा के दरमियान जो है एक रुकावट बन जाती है, एक दीवार बन जाती है। इसलिए फिर मैं खुदा से सही तरीके से बात नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह एक दफा अपने शागिर्दों के साथ एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए गए, और वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और उनके चेहरे की सूरत क्या हुई? बदल गई। उनके चेहरे की सूरत बदल गई, नूरानी होगी, जैसे तेजी के वक्त आफताब सूरज चमकता है, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा ऐसे चमकने लग गया। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पोशाक है वो सफेद बराक यानी कि नूर की मानिंद हो गई। दुनिया का कोई भी धोबी इतना सफेद कपड़ा नहीं धो सकता जितना खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक सफेद हो गई थी। और मेरे अजीजों कैसे हुई? वो क्या कर रहे थे उस जगह पे? खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। हमें भी दुआ की जरूरत है। रोजा रख रहे थे, दुआ भी करनी, मुझे भी दुआ सानू करनी चाहिए, बिला नागा दुआ करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे की सूरत बदल गई। अगर आज हम दुआ करेंगे खुदावंद खुदा से, खुदावंद खुदा के आगे झुकेंगे, तो फिर हमारे भी चेहरे की सूरत बदल जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉल्लियां ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ, ख्वाहिशातां ਦੀਆਂ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ सफेद हो जाएंगे हालेलुया हालेलुया तो खुदा ने कहा कि जब तू दुआ करे तो क्या कर अपने कमरे में जा और कोठरी का दरवाजा बंद कर दे अपनी ख्वाहिशात को क्या कर परे रख दे ताकि कोई तेरे और मेरे दरमियान ना आए जब तू मुझसे बात करे जब तू मुझसे कोई भी बात करे उस बात के सामने कोई चीज ना आ जाए तेरी कोई ख्वाहिश ना आ जाए मेरे अजीजों खुदा उन ख्वाहिशात को भी पूरा करता है उस जगह पर जब खुदावंद का चेहरा बदला उस जगह पर दो शख्स आए थे आप बता सकते कौन है एलिया और मूसा वो ही क्यों आए 1,44,000 नबी हैं वो दोनों ही क्यों आए दानियल भी आ सकता सी यसाया भी आ सकता सी वो दोनों क्यों आए क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी उन्होंने खुदा से कहा कि खुदावंद देख हम तुझे देखना चाहते हैं खुदावंद ने उस वक्त उनसे कहा कि देखो इंसान खुदा को नहीं देख सकता अगर देखेगा तो मर जाएगा खुदावंद ने उनकी इतने 1000 साल पहले जो ख्वाहिश उन्होंने की थी जो मांगी थी खुदा से खुदा ने पूरी की ना खुदा ने अपना दीदार दिया खुदा यीशु मसीह के में से होकर अपना दीदार दिया लेकिन मेरे अजीजों आज हम अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रखें और खुदा जब दुआ करें जब उसके आगे झुके तो जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो भी खुदावंद पूरी करने की कुदरत रखता है कुदरत हालेलुया खुदावंद हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की भी कुदरत रखता है और मेरे अजीजों खुदावंद ये हमारे मांगने से पहले जानता कि हम किन चीजों के मुताज हैं जब हमने दुआ करनी है खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है इस्तिशना की किताब के अंदर सुन ए इस्राएल तेरा खुदावंद एक ही खुदा है क्या कर तो अपने पूरे दिल से अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी ताकत से खुदा से मोहब्बत कर जब हम खुदा से अपने पूरे दिल पूरी जान पूरी अकल पूरी सोच के साथ जब खुदा से मोहब्बत करेंगे और उसके आगे सरनगू होंगे झुकेंगे तो खुदा कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और खुदा ये भी कहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा बस हमने क्या करना है थोड़ा सा मांगने का तरीका तब्दील करना है बस कौन सी कोर की थी हमने खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है अगर हम दुआ भी दिखाने के लिए करेंगे रोजा भी दिखाने के लिए रखेंगे या खैरात भी दिखाने के लिए करेंगे तो फिर हमें कोई अजर नहीं मिलेगा फोके फैर ने जितने मर्जी मारी जाइए कुछ हमें फायदा नहीं होने वाला जब तक हम खुदा के कलाम के अंदर एक बार कोट करूंगा उसके बाद फिर हम आमीन करेंगे क्योंकि वक्त काफी ले लिया मैंने खुदा के कलाम में देखूंगा 16 आयतें और जब तू रोजा रखे और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना करो ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा मेरे अजीजों रोजा रखना है इखरात भी करनी है रोजा रखना है इखरात भी करनी है इखरात ऐसा नहीं करनी दिखा के नहीं करनी ठीक है पहले मैंने जिक्र किया था रोजा दुआ और खैरात इनका ताल्लुक जो है चोली और दामन का है और जब हमने रोजा रखना है तो फिर हमने क्या करना है खैरात भी करनी है और दुआ भी करनी है जब हम दुआ करेंगे
तो खुदावंद उसका हमें अजर देगा, खैरात करेंगे तो उसका अजर देगा, रोजा रखेंगे तो उसका अजर देगा। रोजा हम इसलिए रखते हैं ताकि खुदावंद की नजदीकी को क्या करें, हासिल करें, ताकि हमारी दुआ के अंदर असर हो, हमारे बोलने से मुर्दे जिंदा हो, हमारे बोलने से बीमार शिफा पाए, तब इसलिए हम रोजा रखते हैं। हालेलुया। आज जैसे की सीखा माड़ा जी थोड़ा ही दस दो कोई रोजा दुआ खैरात, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। आंखों को बंद करेंगे उसके बस कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए, जिसके जरिया से उसने आज शाम से बात की है, खुदा के बंदा के लिए, जिंदगी बस कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। आए मेरे अजीजों, चंद लोगों के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम दुआ करेंगे। और इस दुआ में रहनुमाई खुदा का बंदा जवाब हमारे दरमियान मौजूद है, वो इस दुआ में हमें से जितने हमारी जिंदगी में बख्शी के हम तेरे पाक के नाम पे सब याद है, तेरे नाम पे बात करते हैं, बात कोई बला है, कोई शक का तब्दी और तेरे को पता नहीं कुछ कर कुछ काम रहती है, तेरे आत्माओं को अपने करने वाले दिन कुछ नहीं, तेरी दी नहीं तो बल्कि बख्शों में करने को बनाता हूँ। शुक्र करता हूँ कि तूने अपने जलाल में अपने बड़े फजल में छुपाए रखा है, मेरे पास की बाय फजल देख के बाय फजल देख के आया बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा को तुमने हम आप रस्ते में हम आप हिफाजत की है, बाप तेरा शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि खुदा हाँ मुश्किल आई लेकिन खुदा तूने उस मुश्किल में से निकलने की राह भी दी, अपना तेरा शुक्र करता हूँ। और इस वक्त अपने ख़ानदान में खैर वापस से पहुँचे उस बात के लिए शुक्र तेरे बंदों के लिए हम आप जिनको तो हमारे दरमियान में लेके आए कि हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम में से तेरी मीठी बात सीख सकें। हम आप उनके लिए तेरे बरकत को चाहते हैं, रोका देना मसा चाहते हैं खुदावंद। हम आपके ये कलाम जो हमारी ज़िंदगी में भी बोया गया है खुदावंद उगे पड़े और लोगों ने फैलाए और खुदावंद हमारी ज़िंदगी के लिए मसले राह साबित और हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस करें। बात तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस खुदावंद इस मीटिंग का सारा जरा सारी तेरे पाक नाम यीशु और एक एक इंसान बदन के लिए एक बात भी तेरी शुक्रगुजारी करते हुए यीशु मसीह नासिक के नाम से दुआ को मांगते आमीन। उसी तरह हम दुआ करें जो खुदावंद के लिए सुना में कुछ सिखाई, अपने हाथों को बुलंद करते हुए अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, इस खानदान के साथ और दुनिया के कुल ईमानदार लोगों के साथ अज़ल से अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम।